محمد محمود مصطفیٰ مدد برائے پنجتن پاک چار یار نبی ببرکت ہمان واہ اولیاء مدد بکار خیر شہران مدسنی یا رسول اللہ پریشانم مدسنی یا رسول اللہ شراب قسم بازی کن طبیبہ چارہ سازی کن مریض درد ویسیانم مدسنی یا رسول اللہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد منکر القبر لا يمكن ذرا ما كان حقه بعد اسمنا وزر توئی قصہ مختصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے ممبر شریف پر تشریف فرما لائے حضرت احترام علماء اہل سنت سادات اکرام معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا جواب اگر ایک آدمی بھی دے دے گا تو کام چل جائے گا، لیکن آپ سارے لوگ سلام کا جواب دے دیں تو میں سمجھ لوں اس وقت آپ مجبور ہو کے نہیں بیٹھے ہیں بلکہ اپنے آقا کی محبت میں مسرور ہو کے بیٹھے ہیں۔ میں دوبارہ سلام کر کے دیکھوں آپ سننا چاہتے ہیں، سونا چاہتے ہیں یا ذکر مصطفیٰ میں جا کر کے سونا بنانا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ، اہلوں کی سرزمین میرے لیے کوئی نئی نہیں ہے، میں آپ کے لیے کوئی نیا نہیں ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ جیسے اچھے لوگوں سے ملاقاتیں کم ہوتی ہیں اور جب ملاقات کا وقت آتا ہے تو کبھی میرے پاس وقت نہیں ہوتا ہے تو کبھی آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے، لیکن آج ملاقات ہو گئی ہے تو اس ملاقات کو اتنی یادگار ملاقات بنا دیں جب تک ہم جئیں آپ کی محبت کو یاد کریں اور جب تک آپ جئیں ہماری محبت کو یاد کریں۔ مجھ سے پہلے میرے چھوٹے بھائی مکی اہل سنت حضرت قاری اشتیاق جمالی صاحب سے خوبصورت نظامت آپ سماعت کر رہے تھے۔ ممبر شریف پر آل رسول اولاد غوث اعظم حضور سید جابر میاں صاحب اللہ اور حضور سید شاہ نواز میاں صاحب اللہ موجود ہیں اور ان کے ہی بغل میں عالم ربانی فقہ اہل سنت حضرت علامہ عبداللطیف صاحب اللہ، حضرت حافظ قاری محمود حسن صاحب اور دیگر علماء اہل سنت موجود ہیں۔ پروگرام تو الحمدللہ بہت کامیاب چل رہا ہے اور انشاءاللہ کامیاب ہی رہے گا، کیونکہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ جب نیت اچھی ہوتی ہے تو کام بھی اچھے ہوتے ہیں۔ مجھے اس کی آواز بالکل صاف کر ایگو بالکل زیرو کر دو، جو بات میں ان سے کروں ان کی بھی سمجھ میں آنے چاہیے اور جو میں بولوں میری بھی سمجھ میں آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ آواز بڑھا دو، بڑھا سکو تو اچھا۔ کچھ لوگ سامنے بھی کھڑے ہیں، ہمارے علماء کرام ہیں، ان کا استقبال ہے، ویلکم ہے، وہ میری پلکوں کی کارپیٹ بنا کر کے یہاں تشریف لا سکتے ہیں ممبر شریف پر، ان کا استقبال ہے اور وہ کھڑے ہیں تو ان کے ساتھ میں کچھ ہمارے احباب اور کھڑے ہیں۔ اگر زحمت نہ ہو، تکلیف نہ ہو تو وہ لوگ ممبر شریف پہ تشریف لائیں، ان کی جگہ ممبر شریف پہ ہے، وہ آئیں گے تو ہمارے ممبر شریف کی زینت میں اضافہ ہوگا۔ اب یہ بتاؤ اہل والوں، جب دیکھو ادھر مائک پر جو بندہ کھڑا ہے وہ اس لیے قیمتی ہے کہ مائک پر کھڑے ہونے کے بعد میں اپنے قبیلے اور خاندان کی بات نہیں کر رہا ہوں، نبی کے خاندان کی بات کرنے آیا ہوں۔ اگر میں اپنی بات کروں تو میری بات کو ریجیکٹ کر دینا، اگر مدینے والے نبی کی بات کروں تو ہر بندے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر بات کا استقبال کرے۔ اہلوں والوں کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے جلسے کیسے سنے جاتے ہیں، جلسوں میں کیسے بیٹھا جاتا ہے، جلسوں میں کیسے بولا جاتا ہے، بلکہ جلسے سجانا بھی جانتے ہیں، جلسوں میں بیٹھنا بھی جانتے ہیں اور جلسوں میں بیٹھ کے بولنا بھی جانتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے سامنے میں دیکھ رہا ہوں کہ جگہ خالی ہے، اچھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، جگہ کو پر کر سکتے ہیں، تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لائیں، ایسے ہی چلیں جیسے بچپن میں گھٹنیوں چلتے تھے۔ اللہ ہر قدم کے بدلے آپ کو سینکڑوں نیکی عطا فرمائے۔ آ جاؤ تیزی کے ساتھ، شرماؤ مت۔ یہ پیچھے کی سائڈ میں جو آپ نے سرحد بنا رکھی ہے، بیچ میں راستہ چھوڑ رکھا ہے، اس کو پر کیجئے بھائیو۔ آ جاؤ آگے، آ جاؤ۔ تم جتنی جلدی سیٹ ہو جاؤ، ترتیب میں آ جاؤ، اتنی جلدی انشاءاللہ پروگرام کو آگے بڑھا دیا جائے۔ آپ آ جاؤ تاکہ پھر میں جو پیچھے کھڑے ہیں ان لوگوں سے بھی تھوڑی دو چار باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگ بیٹھ جائیں، بھائی جان آپ اکیلے رہ گئے، پیچھے آ جائیں۔ سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ چچا آگے تشریف لائیں، آ جائیے۔ بہت اچھے لوگ۔ اچھا یہ جو کرسی پہ بیٹھے ہیں، کیا حضور کے نام پہ کرسیاں چھوڑ سکتے ہیں یہ لوگ؟ کیوں بھائی ادھر دیکھو میری طرف، میں تم سے مخاطب ہوں نوجوانوں،
हुजूर के नाम पे लोगों ने राजघराने छोड़ दिए, बादशाहत को छोड़ दिया। ये प्लास्टिक की कुर्सी की क्या औकात है? और अल्लाह का शुक्र है हमारा भरोसा प्लास्टिक की कुर्सी पे नहीं है बल्कि आयतल कुर्सी पे है। और ये जो लोग खड़े हैं ये किस चक्कर में पड़े हैं? तुम्हें मालूम नहीं क्या हो रहा है? यहाँ जलसा हो रहा है, हुजूर का जिक्र हो रहा है, नबी की महफिल सजी है, उलमा आए हुए हैं। और सिर्फ उलमा नहीं आए हैं, तुम और मैं नहीं आया हूँ, बल्कि अल्लाह की वो नूरानी मखलूक भी आई है जिन्हें तुम और मैं नहीं दे सकते, जिन्हें फरिश्ते कहा जाता है। इसलिए आ जाओ, बाहर को मत जाओ, हुजूर के नाम पे आ जाओ। भाईजान आप अकेले कुर्सी पे बैठे हैं, सारे भाई आपके यहाँ बैठे हैं। आपको अगर तकलीफ ना हो कोई तो बैठ आ जाए, और अगर कोई तकलीफ हो तो बैठे रहें। समझ रहे हैं आप? क्योंकि हजरत मौला अली जमीन पे बैठे रहते थे। किसी ने पूछा हुजूर हर वक्त जमीन पे बैठते हैं, आप चौकी पे क्यों नहीं बैठते, तख्त पे क्यों नहीं बैठते? हजरत मौला अली का जवाब सुनो। हजरत मौला अली फरमाते हैं मालूम है जो जमीन पर बैठता है वो कभी गिरता नहीं है। आप कुर्सी पे बैठे, चौकी पे बैठे, गिर सकते हैं, लेकिन अगर आप जमीन पे बैठे तो जमीन से तो हमारा रिश्ता है नहीं? तुम दो लड़के रह गए, तुम भी आ जाओ, छोड़ो कुर्सियां, तुमसे तो कह ही सकता हूँ माशाअल्लाह, आ जाओ। अच्छा कुछ लोग घर से इरादा ही करके आते हैं, कोई कितना भी बड़ा मौलाना कहे जहाँ खड़े होना खड़े होकर पूरा जलसा सुनना है नहीं? अब जो लोग अड़ के आए हैं और जिद करके आए हैं और पक्का इरादा लेके आए हैं, तो भाई मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि उनके मजबूत इरादे को मैं तोड़ सकूं। जितने लोग आके बैठ गए वो काबिल मुबारकबाद हैं, और जितने आके बैठ जाएंगे उनको मैं अपनी पलकों पे जगह देने के लिए तैयार हूँ। अब ये बताओ कोई टेंशन तो नहीं है? तैयार है जलसा सुनने के लिए? इधर वाले खामोश हैं, इधर वाले दोनों हाथों बढ़ा के बोले सुभान अल्लाह। आवाज अभी एरो वाली नहीं आई, जैसे एरो के मुसलमानों की आवाज है, आवाज आई उसी तेवर के साथ। इधर वाले खामोश हैं, दोनों हाथों बढ़ा के सुभान अल्लाह। अरे हाथ नहीं उठाए, अकेले बोलो बोलो जोर से सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह बहुत दमदारी है। आप खामोश हैं, अब इधर वाले दोनों हाथों बढ़ा के बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह इधर दमदारी है, उन्हें जन्नत में जाने की बिल्कुल तैयारी है। अब सारा मजमा किसी को दिखाने के लिए नहीं बल्कि अपने नबी को मनाने के लिए आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक दोनों हाथों को फजा में लहरा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। अच्छा सारे लोग हाथ उठा रहे हैं, एक शख्स है ना हाथ उठाने के लिए तैयार है ना मुस्कुराने के लिए तैयार है। अब वो कौन है? वो जानता है या मैं जानता हूँ? एक साहब पार्क में बैठे हुए थे, किसी ने पूछा भाई साहब कैसे बैठे हैं? उसने कहा पहले मुझे वक्त ने बर्बाद किया था, अब मैं वक्त को बर्बाद कर रहा हूँ। हुजूर के जिक्र की महफिल है, एक शेर में पढ़ता हूँ, वालों इजाजत है तो ऐसे ही सुनोगे इतनी खुशी के साथ, जरा हाथों को फजा में लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह, या तमाम से या रसूल अल्लाह। यहाँ तक कुरान पढ़ने से अक्ल पाक होती है, वुज़ू करने से शक्ल पाक होती है, हुस्न देने से फसले पाक होती है, और नबी के नाम पे बोलने से नस्लें पाक होती है। और ये भी याद रखना, अगर दिल कमजोर हो तो नमक हजम नहीं होता, गुर्दे कमजोर हो तो पानी हजम नहीं होता, मैदा कमजोर हो तो नबी का जिक्र हजम, मैदा कमजोर हो तो मीठा हजम नहीं होता, ऐसे ही अकीदा कमजोर हो तो नबी का जिक्र हजम नहीं होता। मेरे सामने जितने बैठे हैं सोचने वाले लोग नहीं बैठे हैं, जितने भी बैठे हैं अपने नबी को मानने वाले लोग हैं। अब 1 मिनट और ले लूं आपका, उसके बाद शहंशाह तरन्नुम शायर हिंदुस्तान कारी ज़ाकिर इस्माइली बड़े खूबसूरत लबो लहजे के मालिक हैं, क्या शानदार नाम पढ़ते हैं, आपको मदीना शरीफ की सरहदों के करीब कर देंगे। अभी 3-4 रोज पहले इनसे मेरी मुलाकात जिला फर्रुखाबाद में हुई थी, नसरतपुर, वहां मुलाकात हुई थी। कम से कम 10,000 का मजमा रहा होगा, लेकिन क्या शानदार जनाब मोहतरम ज़ाकिर इस्माइली साहब ने पेश किया था कलाम, जिसको सुनकर के कोई शख्स महफिल में ऐसा ना था जो झूम रहा हो। आज अहरों में आए हैं तो अहरों वाले दिखा देना, ये बता देंगे कि मैं ज़ाकिर इस्माइली हूँ, तो तुम सुन के बता देना कि तुम अगर ज़ाकिर इस्माइली हो तो हम भी अहरों वाले हैं। शेर पढ़ूंगा, शेर हर कोई पढ़ नहीं सकता, शेर हर कोई सुन नहीं सकता। शेर पढ़ता वही है जो शेर होता है, और शेर सुनता वही है जो शेर होता है। और अहरों में जितने रहते हैं सब आला हज़रत के शेर रहते हैं। मोहल्ला बहुत खामोश है, भाईजान तुम भी बोल जाओ वरना कल क़यामत में कह दूंगा मौला तेरे नबी के जलसे में सब बोल रहे थे, यही 2-4 नहीं बोल रहे थे। इसलिए अब शेर पढ़ना मेरी जिम्मेदारी है, शेर सुनना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जिधर हाथ का इशारा हो देखता हूँ शेर सुनता कौन है, समझता कौन है, और समझने के बाद बोलता कौन है।
यहाँ से शुरू हो रहा हूँ एक मिनट एक काफिये में कम से कम 20 मिसरे एक मिनट में आपको सुनाऊंगा। जितनी तेजी के साथ मैं सुनाऊं उतनी तेजी के साथ मैं सुनना है। और वालों सुनो, नमाज बाकी है अब भी अजान बाकी है, नमाज बाकी है अब भी अजान बाकी है। नबी के दम से शरीयत में जान बाकी है, नबी के दम से शरीयत में जान बाकी है। नबी के नाम की तस्बीह पढ़ता रहता हूँ, उलमा की दुआएं चाहूंगा। नबी के नाम की भाई भाई जो नबी के नाम की तस्बीह पढ़ता रहता हूँ, यही सबब है कि मेरी ज़बान बाकी है। हमारे बाद भी होगी हुजूर की महफिल, हमारे बाद अभी कारवान बाकी है। मेरे हुजूर का जलसा यहाँ पे होता है, इसीलिए तो ये हिंदुस्तान बाकी है। उधर तीर का खंजर कमान बाकी है, इधर हरेक तहन में ज़बान बाकी है। अजीब जंग है ये जंगे करबला जिसमें, अजीब जंग है ये जंगे करबला जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान, सुभान अल्लाह, हुआ सुभान जो अल्लाह, कत्ल वही खानदान बाकी है। अगर फिर से हो कोई करबला तो मत डरना, मेरे नबी का भी खानदान बाकी है। तो कयामत तक अली के लाल का फैजान बाकी है, कयामत तक अली के लाल का फैजान बाकी है। मोहब्बत और उल्फत का हंसी उन्वान बाकी है। अरे वो कब्जे मिट गए कि जिन्होंने बंद किया था पानी, अली शेर खुदा का अब भी दस्तरखान बाकी है। सुभान अल्लाह। अलाउद्दीन की दहली, अलाउद्दीन का करियर, मेरे ख्वाजा पिया का सारा हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह बेशक। अरे हम में कोई ऐसा नहीं था जो नारा लगा देता। कौन है नारा लगाने वाले? कहाँ है? अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, ताजो शरीयत, ताजो शरीयत, अल्लाहु अकबर। जीते रहो, अल्लाह मदीने की ज़ियारत करा दो। आमीन। जिन लोगों ने जवाब दिया अल्लाह उनको भी मदीना दिखा दो। और जो लोग जब नारे पे खामोश रहे उनके लिए दुआ की जाएगी, लेकिन मशवरा करके मौलाना शामिर साहब को बुला सकते। ए बेटा बाबू बैठ जा, मेरे लाल क्या जलसा है और क्या रुहानी है। आप तैयार हो गए माशाल्लाह। अब मैं चाहता हूँ इसी दौरान और इसी खूबसूरत माहौल में शहंशाह तरन्नुम बुलबुले बाग़ मदीना हज़रत क़ारी ज़ाकिर इस्माइली साहब क़िबला बहराई शरीफ, उनकी आमद हो रही है। हिंदुस्तान का निहायत ही खूबसूरत लब लहजे का मालिक, जिसकी नात शायरी की सबसे बड़ी खूबी यह है जब वो गुंबद खज़रा का तज़किरा करते हैं तो सामईन को वक्ती तौर पे ही सही उसी पाकीज़ा दया का बाशिंदा बना दिया करते हैं, जिनकी नात शायरी सुनने के बाद हिंदुस्तान और मदीने शरीफ के बीच जो फासले हैं वो खत्म हो जाया करते हैं। मैं उस वक्त और मोहब्बत और फरहत के समंदर में गोताज़र हो जाऊंगा जब आप उनकी अच्छी नातिया शायरी का तहे दिल से इस्तकबाल करेंगे। आइए महफिल का मेरी तरफ से पहला नारा है, सारा मजमा दोनों हाथों को नबी की मोहब्बत में बुलंद करके 12वीं शरीफ का झंडा बना के लहरा के बोले नारे तकबीर। यार मुझे थोड़ी कोफ्ती हो रही है, 2-4 लोग इधर और आ जाते कितना अच्छा हो जाता यार। भाईजान आ जाओ, एरो गई है, जानते हो तुम्हें एरो के हैं? पता नहीं कहाँ गए। आ जाओ यार, आ जाओ भाई। शानवाज, तुम तो बैठ जाओ। अरे चलो नहीं आएंगे, अब मैं समझ गया क्यों नहीं आएंगे। इधर देखो, जरा मोहब्बत से नारा लगा लो। जितने आ गए तुम सब मेरे शर्मा के हो। मौलाना शामिर साहब ने बड़ा अच्छा जलसा सजाया, उनके साथ जितने लोग मिले और गांव के तमाम वो अफराद जिन्होंने जैसे भी इस जलसे में हिस्सा लिया है, अल्लाह सबकी मेहनतों को कबूल फरमा दे। ज़ाकिर इस्माइली साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं। नारा लगाओ इस मैसेज के साथ कि मौलिक जब जुनून इश्क की तासीर लिखते हैं, मौलिक जब जुनून इश्क की तासीर लिखते हैं, हर एक सच्चाई को इस्लाम की जागीर लिखते हैं। ज़मीन वालों हमारे तक का अंदाजा नहीं तुमको, फलक पर खून से हम नारे तकबीर लिखते हैं। खुदा महशर में पूछेगा कि
ایمان لایا ہوں. اب تو سنائے والوں دل کی تختی پہ لکھ لینا کہ مولا یہ تمنا ہے کہ جب جان سے جاؤں، مولا یہ تمنا ہے کہ جب جان سے جاؤں، جس شان سے آیا ہوں اسی شان سے جاؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ.